Sabda Pramana is considered one of the means to know the reality about Supreme Truth, and that is called Sabda Pramana. Now, when it comes to Sabda Pramana, then it is left to the reliable authority to convey his knowledge about his realization about the Supreme Truth to his disciples. But in today's age where there are many fraudulent claims about being a guru, or these fraudulent claims come from people about whom there are many misgivings in the public. So it becomes pertinent to know that whom should we rely upon in our quest of spiritual knowledge. So here it becomes very important to discuss and analyze this topic, because even today when we are discussing these topics, there are many gurus like Nirmal Baba and all kind of, I don't know whether he is still alive or not, but yes, there are certainly misgivings about him, his being a guru. When it comes to reliable authority, whom should be reliable? So from my study of philosophy, I came to know about certain attempted analysis by some Western philosophers about what is and what can be the nature of reliable authority. So they say that, like the effect of drug, some people claim that they have realized the nature of God. So there are philosophers who have analyzed this very phenomenon, and they say that gurus and some of them who are reliable authority whom we can believe in our quest of spiritual knowledge are those kind of persons who have some kind of realization, and that is not kind of effect which the drugs have on us. It is something, that realization which happens to those competent authority, those kind of realizations which changes the person. His whole attitude changes. He is someone whose realization may have been momentary, but it changes the person concerned forever. So there comes the Sabda Pramana, and that reliable authority we consider as guru. And as I have already said, that I am not the competent person to hold forth on this issue. So without wasting much of the time and without getting any relief to the Guruji, I just hand over the microphone to him so that he will elaborate us further on this. Thanks. सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ कि आप गुरु पूर्णिमा के लगभग एक हफ्ते बीत जाने के बाद भी गुरु में इंटरेस्टेड हैं। ये एक अच्छी बात है। मुझे संभावना थी, ऐसा मुझे लग रहा था कि ये जो हमारे आज का जो डिस्कोर्स होगा, जो टॉक होगा, इसमें शायद बहुत ही कम लोग दिखाई देंगे, क्योंकि जो ये विषय है गुरु, इसमें दो तरह की ऑडियंस होती है। एक तो वो जिन्हें अपने गुरु से मिलने जाना होता है, वहाँ तो ऑडियंस की भीड़ मिलती है। सिलेक्टेड गुरु जिसको आपने सिलेक्ट किया है, वो वाले गुरु के पास तो पूरी भीड़ होती है। और दूसरे जिनको सचमुच गुरु तत्वों में कोई इंटरेस्ट है या ढूंढना चाह रहे, वो जरा थोड़े से लोग होंगे, लेकिन अच्छी बात है, काफी संख्या में लोग हैं यहाँ पर। पहली बात तो मैं इस पूरी चर्चा को शुरू करने से पहले कह दूं कि जैसा अभी कह रहे थे, इंडियन फिलॉसफी के भीतर गुरु के लिए जो तथ्य दिए गए हैं, जो तर्क दिए हैं, उन पर चर्चा की है। मगर मैं जब चर्चा करूँ, चाहे इस विषय पर चर्चा करूँ या नहीं, क्योंकि कई चर्चाएं आपके साथ हो चुकी हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपने बारे में एक बात बता दूँ कि जब भी मैं किसी विषय पर चर्चा करता हूँ, तो उसमें अधिकांश जो हिस्सा होता है, उसका जो पार्ट होता है, वो मेरे अपने जो अनुभव हैं या अपने जो विचार हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको ये लगे कि ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं था पहले, या ये उससे मैच नहीं कर रहा है। तो उस अवस्था में आप पहले ये ध्यान रखिएगा कि मेरे अपने नितांत निजी विचार होते हैं जो आपके साथ शेयर होते हैं, और यदि आपकी कोई आपकी उत्कंठा होती है, जिज्ञासा होती है, तो आप उसे बाद में भी मुझसे पूछताछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिस्कोर्स है उसके बाद की जो हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, बल्कि उसके बाद भी, क्योंकि जिज्ञासाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि भारत में
जब हम भारतीय दर्शन में गुरु और शिष्य, क्योंकि बगैर शिष्य के कोई गुरु नहीं होता। अगर आप पूरे के पूरे भारतीय दर्शन में गुरु की तलाश करेंगे तो गुरु महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण हो जाता है शिष्य। शिष्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने गुरु की जब चर्चा शुरू की तो आपको पता है पहला गुरु कब मिलता है, कोई बताएगा? भारतीय जो ज्ञान का इतिहास है इसके भीतर गुरु, सबसे पहला गुरु कौन होता है? माँ। अच्छा, मैं फिर से पूछता हूँ, भारतीय ज्ञान का जो इतिहास है, जो वैदिक दर्शन है, जो वैदिक दृष्टांत है, इसके भीतर पहला गुरु कौन हुआ? माँ होना बंद थोड़ी ना हो गई है, अभी भी लगातार माएँ हो रही है। मैंने पूछा है पहला, द फर्स्ट, सबसे पहले हमने गुरु किसे माना? आप शायद मेरा प्रश्न नहीं समझ पा रहे, मैं फिर से पूछ रहा हूँ। भारत की जो सनातन परंपरा है इसके भीतर सबसे पहला गुरु, किसी का नाम लो। बृहस्पति। ओके, एक नाम आया। वेद व्यास, भगवान नारायण। और कोई? शिव। थोड़ा सा यूनिवर्सिटी वाले दिमाग से भी बातें हो ना। आप में से कोई? आप सर? शंकर। अच्छा, चलिए हम सनातन धर्म की शुरुआत कहां से करते हैं, कहां से हम मानेंगे? प्रामाणिक सनातन धर्म कहां से शुरू होता है? वेदों से। तो वेदों का प्रारंभ कहां से होता है? ऋग्वेद से। और ऋग्वेद का प्रारंभ किस ऋचा से होता है? अग्नि और पुरोहित के संबंध। अग्नि तुम ही पुरोहित हो, यहां से वेद प्रारंभ होता है। मतलब भारतीय दर्शन जो है वो जो सबसे पहले अपना गुरु चुनता है वो कोई मनुष्य नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक तत्व चुनता है, उसे हम कहते हैं अग्नि। अग्नि तुम पुरोहितम, हे अग्नि तुम ही पुरोहित हो। पुरोहित के माने पुरोहित से पुरोहित बनता है। पुरोहित माने जो पहले ही जान लेता है तुम्हारा हित, ठीक है ना? जो तुम्हारे हित को पहले ही जान ले वह पुरोहित होता है। अब अग्नि, यह अद्भुत बात है, आप में तो कोई विचार नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई स्मृति नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, वो कैसे सोच सकती है तुम्हारा भला या बुरा? लेकिन यहीं से प्रारंभ है। हमने सबसे पहला पुरोहित चुना अग्नि। अब इसे दो तरह से समझना। एक तो अग्नि की कुछ ऐसे विशेष गुण हैं जिन गुणों को जब तुम किसी व्यक्ति में देख लो तो मान लेना कि ये गुरु बनने योग्य है। एक तो ये दृष्टांत हो सकता है, ठीक है? एक व्यक्ति के भीतर अग्नि के भी गुण चले आए तो तुम मान लेना कि वो गुरु बनने के योग्य है। हमने ज्योतिष में भी बृहस्पति को गुरु कहा, और बृहस्पति का तत्व कौन सा है? अग्नि, ठीक है? अग्नि बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू संस्कार, जिसे सनातन धर्म के संस्कार हम कहते हैं, उसमें अग्नि का बड़ा महत्व है। हर जगह अग्नि अग्नि अग्नि, जन्म भी अग्नि, शादी विवाह भी अग्नि, और मरने के बाद भी अग्नि। अग्नि को भारतीय चिंतन में न केवल पवित्र माना गया बल्कि पवित्र करने वाली माना गया। पहला गुण अग्नि का, वो स्वयं पवित्र है। अग्नि कभी दूषित नहीं होती है। एयर पोल्यूशन हो जाएगा, ब्रह्मांड में पोल्यूशन हो जाएगा, नॉइस पोल्यूशन हो जाएगा, वाटर पोल्यूटेड हो जाएगी, ठीक है? भूमि तो पोल्यूटेड हो ही चुकी, लेकिन कभी आप सुन सकते हो कि अग्नि प्रदूषण, आग में प्रदूषण हो गया। आग कभी प्रदूषित नहीं होती, अग्नि कभी भी दूषित नहीं होती। गुरु दूषित नहीं हो सकता है। और दूसरा, जो दूषित नहीं होगा सिर्फ उसी के पास ये क्षमता होगी कि वो तुम्हें दोष रहित कर सके। इसलिए अग्नि पर जब किसी चीज को तुम पका देते हो, चढ़ा देते हो, तो वो दोष रहित हो जाती है। गंदा से गंदा पानी में अगर तुमने आग पे रखा और उबाल दिया, वो पीने योग्य हो जाता है, वो स्वच्छ हो जाता है ना? तो सबसे बड़ा गुण क्या है अग्नि का? वो दोष रहित है और दोष रहित करने की
क्षमता रखती है। इसलिए वैदिक मीमांसाकारों ने सबसे पहले कहा अग्नि तुम ही पुरोहित। दूसरा, दिन में तो सूर्य तुम्हें प्रकाशित करता था, रोशनी, अब का जमाना छोड़ो, उस जमाने में पहुंचते हैं। दिन में तो सूर्य तुम्हें प्रकाशित करता था, तुम्हें रास्ता बता देता था, लेकिन रात में जिस दिन आदि मानवों ने पहली बार जंगल में भटकते भटकते अग्नि को पाया, तो उनको पता लगा कि रास्ता रात में भी ढूंढा जा सकता है। जो सूर्य में है वही सारे गुण इस पार्थिव अग्नि में भी मिलते हैं, भूमि पर भी। तो अंधेरे में जो रास्ता दिखा देता है, बस यही गुरु है। गु माने अंधेरा और हु माने उसे काटने वाला, प्रकाशित करने वाला। तो अग्नि के पास दूसरा गुण आता है। अब यही गुण जब किसी व्यक्ति के भीतर चले आए, जो तुम्हारे अंधकार को काट कर तुम्हें प्रकाश की ओर ले जा सकता है, तो वह कौन हुआ? गुरु हुआ। फिर अग्नि को पुरोहित। तीसरी एक और महत्वपूर्ण बात होती है अग्नि के भीतर। अग्नि इकलौती एक ऐसा तत्व है जो भी अग्नि में समाहित होगा वो केवल अग्नि में जाएगा। कुछ और पानी में हो सकता है कीचड़ बन जाओ, हवा में हो सकता है तुम दुर्गंध या सुगंध बन जाओ, ठीक है, लेकिन अग्नि के भीतर तुम अग्नि बनोगे, शुद्ध अग्नि। गुरु और शिष्य, इन दोनों के बीच जो संबंध होता है वो अग्नि का और अग्नि में प्रवेश बने यज्ञ और यज्ञ में गिरने वाली समिधा का होता है। जैसे ही तुम गुरु को सचमुच प्राप्त करोगे वैसे ही तुम समाप्त हो जाओगे। इसी को कबीर कहता है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा। तो गुरु का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो गुण हुआ वो ये हुआ कि वो तुम्हें अपने जैसा बना लेता है, ठीक है। अब ये तीन गुण अग्नि में दिखाई पड़े जब वैदिक मीमांसाकारों को, तो उन्होंने कहा अग्नि ही हमारा पुरोहित। यहां से एक स्थापना कर दी कि अब अगली बार गुरु बनने का दावा सिर्फ वो करेगा जिसके अंदर यह तीन गुण विद्यमान होंगे। वो दोष रहित हो और दोष रहित करने की क्षमता रखता हो, वो अंधेरे में रास्ता दिखाने वाला हो, माने अज्ञान का विनाश करने वाला हो, और तीसरा वो अपना स्वरूप देने में सक्षम हो। माने जो मैंने प्राप्त किया यदि वही ठीक मैं तुम तक हस्तांतरित कर सका तब तो मैं गुरु कहलाने योग्य, अन्यथा नहीं। गुरु क्या करते हैं? कुछ चीजों को चुराते रहते हैं। हम खुद भी बहुत कम जानते हैं और आपको और भी कम जानने देते हैं। ज्यादा सवाल पूछने वाले गुरुओं को भी निकाल दिया जाता है गुरुओं की सभाओं से, ना। अभी निर्मल बाबा का जिक्र कर रहे थे, पता नहीं निर्मल बाबा हो सकता है सदगुरु हो, हमें नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि कृष्ण ने ऐसा कहा है गीता में कि जब भी मैं अवतार लेता हूँ तो अपने आसपास एक मोह रच लेता हूँ, इसे तुम मुझे पहचान नहीं पाते। वो कहता है कि जब मैं आता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास उड़ाते। तो हो सकता है 2000 साल के बाद यदि ऐसा साबित हो तो हम लोग मूर्ख साबित हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि हम ऐसा नहीं मानते, हम नहीं मानते कि अवतारित हैं, तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है कि उनके यहाँ वही प्रश्न पूछ सकता है जिसे प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए गुरु के पास। कृष्ण इसका विरोध करता है। कृष्ण कहता है कि सिर्फ तेजोमयी व्यक्ति को भी तुम परमात्मा का अंश मान सकते हो। तेज की व्याख्या है क्या? तेज की वैदिक व्याख्या है, यदि तुमसे कोई अपनी समस्या लेकर खड़ा होता है तो तुम यदि उसकी समस्या को अपनी क्षमता से तुरंत समाप्त कर सके तो तुम तेजवान हो। और अर्जुन पूछता है सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो कहता है सबसे बड़ी समस्या है प्रश्न। पैसा बड़ी समस्या नहीं है, भूख बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन प्रश्न बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जन्म जन्मांतर तक जा सकता है। एक प्रश्न तुम्हारे मन में उठ गया और तुम उसका उत्तर नहीं खोज पाए तो अगले जन्म में फिर से खोजो। भूख तो मिट जाएगी, वो भूखे मर जाओगे, अगली बार फिर तुम्हें कोई मां मिल जाएगी और तुम पेट भरोगे, वो बड़ी समस्या नहीं। धन इस बार नहीं मिला, अगली बार मिल जाएगा। लेकिन प्रश्न यदि उठ गया तो बगैर अपना उत्तर ढूंढे कभी रुकेगा नहीं। तो भारतीय दर्शन के अंदर जो शिष्य है वो प्रश्न है और जो गुरु है वो उत्तर है। इसीलिए हमने उपनिषद कहा। उपनिषद के माने भी होता है अग्नि के सानिध्य में बैठना, अग्नि के समीप बैठना। जब आप आग के समीप बैठ करके वार्ता करते हैं तो इसे उपनिषद कहा गया। अब वो अग्नि समझ लेना, ये नहीं कि तुम कैंडल लाइट डिनर